Hello everyone, a very warm welcome to our channel Learn by Expert। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल Learn by Expert में। जैसा कि आप ये जानते हैं, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ आर इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज टेंस। So if you have not watched our previous videos, I have a request, I have a humble request. Please do watch those videos in order to understand the actual concept of the topic. So अगर आप चाहते हैं कि टेंस का आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, बेसिक से एकदम स्क्रैच से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए लेट्स बिगिन आवर सेशन। So far we have completed simple present tense, that means present indefinite tense, and we have also completed present continuous tense. So हमने simple present tense और present continuous tense एकदम complete कर लिया है, and I have already told you कि उसका usage क्या है, उसके rules exactly उसको कैसे use करना है, कहाँ पे use करना है, और the most important thing, the reason that why we should use simple present tense and present continuous tense. सो आई रियली होप आपको वो कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टेंस की बात करने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ। परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आई मेड इट वेरी क्लियर, परफेक्ट मतलब जिसमें कोई फ्लॉज ना हो। जब हम बात करते हैं कि कोई फ्लॉज ना हो, दैट मीन्स वो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, सो व्हाट हैपन, वी हैव गॉट थ्री टाइम फ्रेम, वी हैव पास्ट, वी हैव प्रेजेंट, देन वी हैव फ्यूचर, राइट? सो दीज आर द थ्री time frames. So this perfect tense, when I talk about present perfect tense, ये इस चार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे दिखाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे समवेयर दिखाएगा। डू यू अंडरस्टैंड कि there is some action which started in the past and it has just completed. So it has just completed. What I mean by just completed, it has completed before now. यानी कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, पहले शुरू हुआ था, और अब अभी से थोड़ी देर पहले वो खत्म हुआ है। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट से पहले वो काम हो चुका है और वो पास्ट में शुरू हुआ था, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम। ये दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू। प्लीज लिसन टू दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the difference between the past tense and the present perfect tense. When do we use the present perfect tense, present continuous tense? So all these concepts are very much interrelated. Perfect tense को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, वो अभी क्लियर हो जाएगा, because it is very important to listen to this concept. ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनिएगा। perfect tense में, present perfect tense में, when if I'm talking about present perfect tense, that means I do not know the time. So we have unspecified time, yeah, unspecific time. I do not know the time or the time frame when this action has happened. I'll give you two examples. Let me just give you two examples. Then you will be able to understand. There are there are two sentences. One, I saw that movie yesterday. So this is sentence number one. Okay. Okay. I'll tell you another sentence. I have seen that movie several times. Now, sentence one says, I have seen this movie in the past. Sentence number two also says, I have seen this movie many times, several times. That means I have seen this movie. So in both the cases, the task has been completed. So how will you identify? So is this a past? Do we use, should we use a simple past tense over here, or should we use perfect tense? क्या हमें past tense use करना चाहिए या फिर present perfect tense use करना चाहिए? अब ये confusion हम कैसे दूर करेंगे? So sentence number one कहता है कि मैंने ये movie पहले देख ली है.
सेंटेंस नंबर 2 भी ये कहता है कि मैंने ये मूवी बहुत बार देखी है। दोनों केस में एक्शन बहुत बार कंप्लीट हो चुका है। सो दैट मीन्स दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। बट नो, ऐसा नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जहां पे भी टाइम की बात आ जाए या जहां पे टाइम मेंशन नहीं होता, जहाँ पे अनस्पेसिफाइड टाइम होता है, जहाँ पे टाइम मेंशन नहीं होता, वहां पे हम श्योर नहीं होती कि वो एक्शन हुआ कब है। ठीक है, अब मेरे को श्योर नहीं है कि ये एक्शन पास में हो चुका है या होके अभी खत्म हुआ है। सो आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट द टाइम फ्रेम। तब हम परफेक्ट यूज करते हैं। इफ यू लुक एट द सेंटेंस 1, आई सॉ दैट मूवी येस्टरडे, मैंने ये मूवी कल देख ली है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन द स्पेसिफिक टाइम ओवर हियर, यानी कल मैं ये कल मूवी देख चुकी हूँ, यानी ये एक्शन जो है पास्ट में हो चुका है। मैंने यही पे डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्शन मैंने पहले कर लिया है। कब किया है वो भी बता दिया है। सो दैट मीन्स आई एम 100% श्योर कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था। ठीक है, ये मेरे को एकदम श्योरिटी दे रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे मेरे पास स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, similarly, if you look at the sentence number 2, I have seen that movie several time. Now, अब ये मैंने मूवी बहुत बार देख ली है। ये भी हो सकता है कि अभी मैंने मूवी देख के खत्म की हूँ, जस्ट completed before now. हाँ, ये एक्शन जस्ट नाउ से पहले कंप्लीट हुआ है। प्रोबेबली यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगना चाहिए। हाँ, तो जब मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है। आई हैव नॉट मेंशन एनी टाइम ओवर हियर, वी डू नॉट हैव स्पेसिफिक टाइम इन सेंटेंस 2. So that is the reason I have used present perfect tense over here. Now, did you understand the difference between the simple tense and the perfect tense? So this is a huge difference, guys. So जब मैं टाइम फ्रेम की बात करती हूँ, जब मैं स्पेसिफिक टाइम की बात करती हूँ, if it is mentioned, then it is simply a past tense. हाँ, ओके। अब टाइम फ्रेम में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, सिंपल पास्ट टेंस में अगर आपके पास सेंटेंस में है दैट डे, इफ यू हैव यूज येस्टरडे, या फिर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और 1 year ago. So words like this specifies the time when the action has happened. So I have already said this action has happened in this particular time. So this itself states this action has been completed in the past. This action has completed in the past. So obviously this is like really this itself states that it's a past tense. But similarly, अगर मैं present perfect tense की बात करती हूँ, if I talk about the present perfect tense, तो कौन सी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सेंटेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? जैसे कि सेवरल टाइम्स। आई रियली वांट यू टू मेक अ नोट ऑफ इट बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट इन एग्जाम। ये आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। अगर आप ये वर्ड्स यूज कर लेंगे, ये वर्ड्स आप नोट कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा भाई आपने येस्टरडे देखा, ओ ये तो पास्ट टेंस है। आपने लास्ट मंथ देखा, यू विल आइडेंटिफाई ये पास्ट टेंस है। अरे सेवरल टाइम्स है, दैट मीन्स यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज होना है। ओके, मेनी टाइम्स। Okay, okay, ever, never, recently, yet, uh, so far. So far एग्जाम में बहुत यूज हुआ है गाइस, बहुत ज्यादा यूज हुआ है। मैंने आगे एग्जाम्पल भी लिया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया, आई हैव टेकन द सेम क्वेश्चन। सो आपको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इससे, सो फार से, कि कैसा सेंटेंस आता है एरर डिटेक्शन में। सो वर्ड्स लाइक दिस states that action has been completed, or these words specifies that we have to use present perfect tense. Okay, so I hope the first difference is very much clear. अगर मैं specify कर रही हूँ, ओके, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि ये होता है, मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी दे और क्लीन हो जाए एकदम। Okay, I think that's will be visible. Okay. अब मैं रेफर कर रही हूँ, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, पास्ट
this is present and this is future. ठीक है, कोई भी एक्शन अगर पास्ट में हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक्शन पहले हो चुका है? हमें पता लगेगा जब हम सेंटेंस में मेंशन करेंगे कि वो एक्शन कब हुआ। मैंने मूवी कल देखी, मैंने मूवी लास्ट मंथ देखी, मैं अपनी फ्रेंड से पिछले महीने मिलने गई थी। हाँ, तो ये सेंटेंसेस में आपको कैसे पता लग रहा है एक्शन पहले हो चुका है? व्हाई? बिकॉज आपने एक स्पेसिफिक टाइम यूज करा है कि वो एक्शन जब कंप्लीट हुआ था एक स्पेसिफिक टाइम में हुआ था। लेकिन जब मैंने बोला कि मैं अपनी बहुत सारी दोस्तों से मिल चुकी हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मैं ये अब मिली थी या इस टाइम फ्रेम पे मिली या मैं इधर मिली या फिर मैं अभी जस्ट मिल के हटी हूँ। सो व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द एक्शन कि कब वो कंप्लीट हुआ है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तब आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, जैसे आई हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे लिख देती हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। ठीक है, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स कि मैंने असाइनमेंट कब कंप्लीट किया मुझे नहीं पता। सो प्रोबेबली इस ड्यूरेशन में मैंने कहीं पे करा है। हो सकता है मैंने यहाँ पे काम करा हो, यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ हो। सो जब मुझे स्पेसिफिक टाइम नहीं पता तो तब मैं क्या यूज करती हूँ? परफेक्ट टेंस यूज करती हूँ। अगर मैंने बोला आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट yesterday, अब मुझे पता है कि वो असाइनमेंट मैंने कब कंप्लीट किया पास्ट में। हाँ, तो जब मैं बोल रही हूँ कल, कल यानी पास्ट, तो ये सिंपल क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? ये ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। सो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है गाइज, ये नोट डाउन कर लो, प्लीज नोट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आप क्या यूज करेंगे? हैज या हैव। सो पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? सो ये दिस इज अ स्ट्रक्चर, प्लीज नोट इट डाउन। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखते हैं। आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स ओनली अ फ्यू अटेंडेड द सेशन सो फार। सो अगर आप सेंटेंस का मतलब समझे, 300 स्टूडेंट्स में से, 300 स्टूडेंट्स में से कुछ ने अटेंड किया है सेशन अभी तक। सो फार का मतलब अभी तक। तो यानी मैंने क्या बोल दिया? मैंने यहीं पे बोल दिया कि अभी तक की बात हो रही है, समथिंग which started in the past and has just completed before now, has just completed. So अभी तक जिन बहुत ही कम बच्चों ने सेशन अटेंड किया। तो मैं ये बात रेफर कर रही हूँ। दिस इज लाइक ये एग्जाम में आ चुका है गाइस क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को एक कीवर्ड मिल गया सो फार, और सो फार हम कब यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे यानी मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए? आउट ऑफ 300 स्टूडेंट ओनली अ फ्यू, दिस इज व्हाट? दिस इज सब्जेक्ट, ओनली अ फ्यू यहाँ पे क्या है? वर्ब है। अटेंडेड द सेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैज या फिर हैज आना चाहिए। ओनली फ्यू, सॉरी हैव आना चाहिए गाइस, आई एम रियली सॉरी। ओनली अ फ्यू हैव अटेंडेड द सेशन। क्लियर है? वर्ब थर्ड फॉर्म है और हैज और हैव यहाँ पे लगाना है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। ही रिसेंटली विजिटेड द सेवरल प्लेसेस इन इंडिया। उसने अभी रिसेंटली बहुत सारी जगहों पे, वो भारत की बहुत सारी जगहों पे गया है। अब आपको यहाँ पे कीवर्ड क्या मिल रहा है? रिसेंटली। तो यानी क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यानी क्या आना चाहिए? ही हैज रिसेंटली विजिटेड दी सेवरल प्लेसेस इन इंडिया। ये क्या है? वर्ब थर्ड फॉर्म है और हैज और हैव यहाँ पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस। अनफॉर्चुनेटली ही हैज मेट विद द एक्सीडेंट येस्टरडे। अनफॉर्चुनेटली ये है एक्सीडेंट्स, मतलब ये है, ये इधर एक नाम ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शाम ले लेते हैं। शाम कल मतलब शाम का कल एक्सीडेंट हो गया।
अब मैंने क्या करा, मैंने बात क्या कर दी, कल हो गया, ये काम कल हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली ये काम कल हो गया, तो कल यानी मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, आई एम रेफरिंग टू द पास्ट। सो यहाँ पे क्या हैज मेट आना चाहिए, नहीं। सो श्याम met with an accident yesterday. Clear है? Now did you understand the difference between the present perfect and the simple past tense? So अब आपको पता है कि present perfect tense का utilization कहाँ पे हो रहा है? Okay. Now यहाँ पे मैं दोबारा से एक चार्ट बना के, बिकॉज अभी जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट, कि आई शो यू अगेन। 3 टाइम रेफरेंस है ना? सो मैंने आपको बताया कि जो परफेक्ट टेंस है वो ज्वाइन करता है पास्ट और प्रेजेंट को, ये दोनों को जोड़ता है, कि कोई एक्शन पहले शुरू हुआ और अब थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। पर कभी कभी क्या होता है कि व्हेन आई वांट टू लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। हो सकता है आई जस्ट वांट टू मेंशन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, आई वांट टू मेंशन दिस टाइम फ्रेम, दिस टाइम फ्रेम, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, देन वी डू नॉट यूज पास्ट टेंस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, हम मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आई सॉ दैट मूवी लास्ट मंथ एंड देयर इज अनदर सेंटेंस, आई हैव नॉट आई हैव नॉट सीन एनी मूवी इन द लास्ट मंथ। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम जहाँ पे लास्ट मंथ आपने बोला था वहां तो फिर पास्ट यूज होना चाहिए, अब आपने सेकंड सेंटेंस में आपने परफेक्ट टेंस क्यों यूज किया, ये दोनों सेंटेंस एकदम करेक्ट है, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ गया, दोनों में लास्ट मंथ आ रहा है। सो गाइस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लास्ट मंथ एंड इन द लास्ट मंथ। हाँ, सो व्हेन आई टॉक अबाउट लास्ट मंथ आई एम टेलिंग यू द स्पेसिफिक टाइम, लेकिन जब मैं बोलती हूँ इन द लास्ट मंथ आई एम हियर टेलिंग यू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। सो मैं ड्यूरेशन बता रही हूँ कि ये जो महीना है पूरा, सो आई एम रेफरिंग टू दिस पूरा मंथ, द होल मंथ। मैंने कोई मूवी नहीं देखी इस पूरे मंथ में, और यहाँ पे मैंने सीधा बोल दिया कि पिछले महीने मैंने ये मूवी देख ली थी, यहाँ पे मैंने रेफर कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ड्यूरेशन बताया। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं बोलूँ कि लास्ट 6 मंथ, और जब मुझे ड्यूरेशन बताना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इन द लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, सो कीप दैट इन माइंड प्लीज। ओके, so there are other cases also where we use present perfect tense. Sometimes we want to tell someone about our experience, कि हमारा ऐसा experience रहा जो probably किसी और का नहीं रहा, तब हम ये use करते हैं tense, perfect tense use करते हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव met the president of USA। हाँ, ये एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। या आई हैव लर्न क्लासिकल डांस। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो हर कोई तो क्लासिकल डांस नहीं सीखता है, देयर आर फ्यू हु एक्चुअली लर्न क्लासिकल डांस। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो व्हेन यू वांट टू शेयर एन एक्सपीरियंस, then also you can use perfect tense. Secondly, when you want to state any sort of accomplishment, then also you can use present perfect tense. Let me give you an example. Uh, she has got the first distinction in her class।
है ना, यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट द डिस्टिंक्शन, आई एम टेलिंग यू अबाउट द अकॉम्प्लिशमेंट विच आई एम शेयरिंग इट विद अदर्स। तब मैंने क्या यूज करा, परफेक्ट टेंस यूज किया। सो देयर आर ऑल्सो सर्टेन केसेस वेयर वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो so far we have understood that there's the difference, the slightest difference that a simple past tense and the present perfect tense has, वो हमने किया, राइट। हमने ये किया कि ये कुछ कीज होते हैं जो बताते हैं कि कहाँ पे पास्ट टेंस यूज हो रहा है और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, राइट। और अगर हमें एक्सपीरियंस बताना हो तो तब भी हम यूज कर सकते हैं, अकम्पलिशमेंट बताना हो तब भी हम परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी एरर जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप अपने डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिवर्ट इट बैक, हम उस पर जरूर रिवर्ट करेंगे। ओके, मूविंग ऑन। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको और क्लैरिटी दे देगा। आई एम लिविंग इन दिस फ्लैट फॉर 4 years। हाँ, अब आप मुझे बताइए सेंटेंस का क्या मतलब है, आप सोचिए खुद। हाँ, मैं इस फ्लैट में 4 साल से रह रही हूँ। हाँ, तो यानी ये 4 साल पहले एक्शन शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तो मैंने ये नहीं देखो कोई काम, तो यानी यहाँ पे पास्ट तो हो नहीं सकता है। वाई? बिकॉज मैंने बोल तो दिया पास्ट में हुआ है, बट ये अब तब से काम चल ही रहा है अभी तक, तो ये पास्ट टेंस यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, क्या यहाँ पे परफेक्ट टेंस आएगा? परफेक्ट टेंस रिमेंबर हम कब यूज करते हैं, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और खत्म हो गया हो, अभी खत्म हुआ हो, तब हम परफेक्ट यूज करते हैं। पर ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है कि मैं अभी भी इस फ्लैट में रह रही हूँ 4 साल से, तो परफेक्ट टेंस भी नहीं यूज करते। तो ये एक्शन आपने नोट किया, पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक चला, और ये आगे चलता जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि ये एंड कब होगा, पर मुझे इतना पता है कि स्टार्ट कब हुआ था। सो ऐसे केसेस में जहाँ पे एक्शन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और जहाँ पे मुझे स्टार्ट पता है कब हुआ था, आई नो दैट द एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, the action started in the past, but we are not sure about the end। ठीक है, जहां पे मुझे स्टार्ट पता है लेकिन एंड नहीं पता है, यानी वो अभी भी चले ही जा रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो दो सेंस दे रहे हैं, परफेक्ट का सेंस भी दे दिया और कंटिन्यूअस का सेंस भी दे दिया। तो ये कौन सा टेंस हो गया गाइस? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही पहचाना आपने, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि दैट एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आई नो व्हेन वाज इट स्टार्टेड, मुझे पता है कि कब स्टार्ट हुआ था, और एक्शन अभी भी चल रहा है। ओके, मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ गाइस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो यहाँ पे हमें स्टार्ट का पता होता है, बट हमें एंड का पता नहीं होता है। सो इसका स्ट्रक्चर गाइस है, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब आईएनजी, और यहाँ पे सिंस और फोर भी लगाया है। हाँ, बिकॉज सिंस और फोर हमें बताता है कि ये एक्शन कब शुरू हुआ था। तब यहाँ से हमें क्या पता है कि स्टार्ट का पता लग जाता है, इसलिए जहां पे भी सिंस और फोर यूज हो जाए आप समझ जाइएगा कि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। ठीक है, क्लियर है? हैज बीन वर्किंग सिंस, अभी मैं आपको सेंटेंसेस के एग्जांपल दे दूंगी। अच्छा, कब सिंस यूज करना है और कब फोर यूज करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। प्लीज मैं आपको बता देती हूँ। सिंस गाइस ड्यूरेशन बताता है, ठीक है, कि कौन से स्पेसिफिक टाइम के ड्यूरेशन के बारे में बात हो रही है। फॉर ये बताता है, सिंस क्या होता है, हमें एक स्पेसिफिक टाइम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 4 o'clock,
है ना, या सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, या फिर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से अभी तक हो गया, हाँ, सिंस ओके, सिंस अगर मुझे ईयर बताना हो तब भी यूज हो सकता है, सिंस 1964, सिंस 2008, तब भी मैं बता सकती हूँ, सिंस 4 years भी लिख सकती हूँ, एज भी बता सकती हूँ, ठीक है। बट व्हेन आई नीड टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन, कि कितने सारे सालों से ऐसा हो रहा है, आई डू नॉट नो द स्पेसिफिक ईयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेसिफिक ईयर, बट आई नो द ड्यूरेशन, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक फॉर 4 years, 5 years, है ना, तब हम बता सकते हैं। ओके, सो ये आपको आई रियली होप क्लियर हो गया कि कहाँ पे सिंस यूज करना है और कहाँ पे फॉर यूज करना है। अच्छा, एक एजेस भी यूज होता है, फॉर एजेस, ठीक है। सो आई बीन वर्किंग फॉर एजेस, बहुत सदियों से काम कर रहा हूँ मैं, एक ऐसा रेफरेंस देने के लिए हम कर लेते हैं यूज, ठीक है। आई रियली होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो लेट्स नाउ लुक एट द एग्जांपल, आई एम लिविंग इन दिस फ्लैट फॉर 4 years। सो यहाँ पे अगेन कोई एक्शन है विच स्टार्टेड इन द पास्ट, 4 years बैक आई स्टार्टेड लिविंग इन द फ्लैट, अब तक ये एक्शन चल रहा है, मैं अभी तक रह रही हूँ और आगे रहती रहूंगी, बट मुझे एंड नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होने वाला है। तो ये आई के साथ क्या लगता है, हैव, और आ जाएगा बीन, एम नहीं आएगा, और वर्ब आईएनजी यहाँ पे लिखा हुआ है और फोर का रेफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। ही टीचेस साइंस सिंस 2006, हाँ, अब ये सिंस मतलब 2006 से वो साइंस पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही हैज बीन टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई डैश हियर फॉर मोर देन 3 years, मैं तीन, यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है, मैं 3 साल से ज्यादा यहाँ पे पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। सो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, सो दिस एक्शन स्टार्टेड 3 years बैक बट इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सो ये एक्शन 3 साल पहले शुरू हुआ था बट अभी भी चल रहा है, सो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई हैव बीन स्टडिंग here for more than 3 years, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जॉन, और यहाँ पे काम की बात हो रही है, जॉन वर्क फॉर द गवर्नमेंट सिंस ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब से वो ग्रेजुएट हुआ है तब से वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। सो आई हैव मेंशन दी स्पेसिफिक पॉइंट, तो इसलिए सिंस आ गया, और अब मैं क्या यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या आ जाना थी, जॉन हैज बीन वर्किंग, क्लियर। All right, so I hope this the difference between the perfect tense and perfect continuous tense is clear. So okay, let's look at two more examples. So ये previous year question है guys, previous year question है. So let us look at the first example. Many multinational companies are invested in India as India is one of the world's fastest growing economy. सो मैं आपको अगर क्वेश्चन का या सेंटेंस का मतलब बताती हूँ, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में, हाँ, क्यों, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, ठीक है। सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत, उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। सो हम क्या बात कर रहे हैं, अब जब मैं यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में देखिए ग्रोइंग, तो ये क्या बता रहा है, हमें कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है, दिस एक्शन इज करंटली हैपनिंग। सो मैंने ये नहीं बताया कि पास्ट में ये एक्शन कब हो, कोई यहाँ पे रेफरेंस आपको दिख रहा है कि पास्ट में कुछ हुआ है, कि ये 4 साल से इन्वेस्ट कर रही हैं, अगर मैं बोल देती ना कि 4 साल से इन्वेस्ट कर रही है तब हमारा टेंस बदल जाता, पर यहाँ कोई टाइम रेफरेंस नहीं है, सिंपल बोला है कि ये काम अभी हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग, आप लोग खुद सोचिए, क्या ये सेंटेंस, इज दिस सेंटेंस करेक्ट या नहीं है, एक बार खुद सोचिए, खुद लॉजिक लगाइए। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई बुराई नहीं है, एकदम सही है सेंटेंस, इसमें कोई गलत नहीं है, जस्ट बिकॉज हमने अभी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बोल दूं कि आई
हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ। तब मैं यहाँ पे क्या कर दिया, अब मैंने टाइम बता दिया कि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ और पढ़ाती जा रही हूँ। तब मैंने क्या कर दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि डिफरेंस कहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या बात करी, मैंने कोई टाइम रेफरेंस नहीं दिया, मैंने कहा कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है, तो इसलिए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग आ जाएगा। क्लियर? Okay, now let's see the another example. Again, this is also a previous year question. They have recently began to purchase furniture for their new bungalow, which is being constructed in Delhi. So, उन्होंने recently फर्नीचर खरीदना शुरू किया अपने नए बंगलो के लिए, जो अभी रिसेंटली अभी कंस्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, सो यानी जो एक्शन है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट की बात कर रहा है, हैव बिगन। सो ये क्या बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था गाइस, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे हैव सही लगा है, प्लूरल के साथ हैव आना चाहिए, लेकिन ये जो बिगैन है, दिस इज नॉट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो ये एक्चुअल वर्ब होता है बिगिन, ये V1 होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाता है बिगैन, और थर्ड फॉर्म होता है इसका गाइस बिगन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिगन। ठीक है, सो आई रियली होप ये क्लियर हो गया। So today we have actually completed the all sub parts of the present tense. We have done present tense, present indefinite tense, present continuous tense. We have done present perfect tense and present perfect continuous tense. So in the next session we'll be continuing with the next topic, that is past tense. और हम understand करेंगे difference between the present and the past and their utilization. And we will be discussing more questions which has come in the government exam. जो government exam में और questions आए, we will also discuss that. So if you have liked this session, अगर आपको session पसंद आया, please like, share और subscribe ज़रूर करिए, and complete series ज़रूर देखिएगा, then only it's gonna be useful, तभी ये आपके लिए useful होगा. So thank you so much.